जी सर। Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, we have left with the thermal properties. So starting now again from the thermal properties, all we know the conduction or transfer of heat has three modes: conduction, convection, and radiation. So in dentistry, we have only two main properties which are going to be dealt with the thermal situations or to the thermal insult or to the thermal stimulus. For example, hot and cold food and drinks, they can raise the localized temperature. And if the localized temperature is increased, what will it increase? It will increase the setting reaction of the dental materials which are in place there in oral cavity or in a tooth. Our dentine and enamel are good thermal insulators. So any other consequence which a thermal change can produce on our restoration or on the enamel or dentine is the dimensional change, because if the thermal change is marked more severe, then all of you know contraction or expansion occurs. So thermal conductivity is another thing which we have to deal, and it is the first property which we face in the dental materials, especially used for restoration. Thermal conductivity is the rate of heat flow per unit temperature gradient. And obviously we have said that good conductors have high values of conductivity. Now, कितने लोग रह जाते हैं यार, या अल्लाह खैर। कि आप लोग कोशिश किया करें, जब ज्वाइन हो जाए तो आप लोग कोशिश ये किया करें कि जब आप लोग 30, मैं आप लोगों का इंतजार करता रहता हूं, तो 30 के ऊपर आप कोशिश करें 31-32 तक आने की। इस तरह से प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, so thermal conductivity is another thing. So apart from restoration, what we can see in other materials, that a denture based material which ideally should have a high value of thermal diffusivity. Why? Because if we have made a denture based material with low thermal diffusivity from diffusion, so what it can do, it can harm the patient. And if it have a high value of thermal diffusivity, then the patient will satisfactorily respond to the hot and cold stimuli in his or her mouth. Otherwise, he will burn his mouth. Next, thermal diffusivity के बाद अब हमारे पास जो चीज आएगी, how to record the thermal diffusivity. So for this we have to use thermocouples. Thermocouple आप लोगों ने देखा होगा. It is a recording device which
gives stimulus or which takes the क्या उसको कह सकेंगे यार हम उसको सर ऑन वन सिग्नल, साइड देयर हाँ सिग्नल जी, सॉरी वो डिफरेंट टाइप, दो टाइप ऑफ मटेरियल यूज करते हैं, वो एक कूल और दूसरा हॉट उसके लिए ना, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। ये नहीं 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 नहीं, वो और चीज है, वो कुछ और है, वो बाद में फिजिक्स आते हैं। में हाँ नहीं नहीं नहीं, ये थर्मोकपल की बात कर रहे हैं। थर्मोकपल इज अ डिवाइस विच टेकिंग signals from the thermocouple or which transmit the signals from the hot or cold material to the recording device. थर्मोकपल ये आप लोगों ने शायद देखा हो, किसी फर्नेस के अंदर अगर हम देखें तो एक चीज सी लगी हुई होती है, एक डिवाइस सा होता है, तो उसको वो जो होता है सिग्नल लेके ऊपर जाता है, जो मतलब वो बताता है कि इसमें टेम्परेचर कितना हो गया, क्योंकि अदरवाइज तो हम डायरेक्ट उसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं रख सकते ना, वो जरा सा सेंसिटिव होता है। तो थर्मोकपल के आगे दो तारें होती हैं जो कि उसको लेके जाता है। तो इसको अगर हम थर्मोकपल को आपके लिए करना चाहें कुछ, क्या मसला है यहाँ पे, हम इसको चला नहीं पा रहे, अच्छा सॉरी, ये अच्छा चले हम इसको ऐसे ही ले जाते हैं। ये नजर आ रहा है आपको थर्मोकपल? जी जी सर। तो ये थर्मोकपल होता है, इसके अंदर से ये दो, ये मटेरियल है हमारा, या जो भी आप उसको फर्नेस कह लें, इसके अंदर ये पड़ा हुआ होता है, इसमें से दो तारें जा रही होती हैं रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरफ। ये किसी दिन आपको दिखा भी देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम कहाँ पे थे जी, हम यहाँ पे थे। अच्छा, नाउ thermo after the thermocouple we see another property of material which is called as coefficient of thermal expansion. So if we go for coefficient of thermal expansion, what is this? It is a fractional increase in length of a body for each degree centigrade increase in temperature. Coefficient of thermal expansion is an equilibrium property, and the expansion or contraction due to the transient stimuli is a function of both coefficient of thermal expansion and the thermal diffusivity. Here you can see different coefficient of thermal expansion. For enamel it is 11.4, for dentine it is 8, for acrylic resin it is 90, porcelain it is 4, amalgam it is 25, for composite resin it is 25 to 60, and for silicate cements it is 10. Is it clear ji? यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट इज द, सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। अब ठीक है? यस सर। क्या हो गया जी? वो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई थी। अच्छा, तो उसमें क्या आ जाता है फिर? सर आप आ रहे थे सर। अच्छी बात नहीं है यार, कभी कभी मुझे भी देख लिया करो। अच्छा जी, आपको देखे सर, मगर आप, अच्छा ये मुदस्सर साहब अब आ रहे हैं। अच्छा जी, फॉर understanding or coefficient of thermal expansion, see this is a filling in a cavity, we have made a cavity, ठीक है जी, इन्वर्टेड कोन टाइप कैविटी। ये इसमें अगर कोन देखें तो ये इन्वर्टेड हुई हुई है ना, कोन हमारी कैसे होती है जी, कोन हमारी हमेशा ट्रायंगल शेप की होती है। जी जी बिल्कुल, कोन हमारी कुछ इस किस्म की होती है ना, यूं फिर यूं और फिर यूं, यही होगी ना कोन अगर हम वैसे करें तो इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो ये रिवर्स में इस तरह से हो जाएगी इन्वर्टेड कोन।
इसमें ये वाला जो हमारा थोड़ा सा तो स्ट्रक्चर होगी इसको होल्ड कर लेगा, बाहर नहीं जाने के देगा। क्लियर है जी? नाउ what happens if it has a high coefficient of thermal expansion? So if cold stimulus is there, then what will cause it? Cold stimulus is if there, then it will shrink from all the sides, from here, here, and from here also. So अभी तक ये लोग आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है क्या करते फिरते हैं। तो what will happen when a restoration shrinks? It will be present not in direct contact with the dentine or enamel. It will lose its interface with that material or tissue, and there are much chances, if the size of contraction is more, that the restoration can be pulled out. Or what will be happen, or what will happens, that restoration failure will happens. Clear जी? Yes, sir. अच्छा जी, तो ये हो गया जी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ये हमारी सिर्फ दो प्रॉपर्टीज थी जिसके ऊपर हम बात कर सकते थे थर्मो रेगुलेशन के हवाले से। अगर हम देखें तो मेजरमेंट उसकी हमने पहले कह चुके हैं कि हमारी थर्मोकपल के थ्रू होगी, और थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है उसकी एक वो होती है K, और D इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय राउ। तो ये आप लोगों ने उधर से देख लेना है बुक में से, क्योंकि कुछ ना कुछ आप भी पढ़ें। डेंचर बेस मटेरियल का हम आपको बता चुके हैं कि उसके अंदर इसका होना ज्यादा जरूरी है। नाउ कम्स एडहियन। ठीक है जी। सो जी, एडहियन, व्हाट इज एडहियन? चिपकना, चिपकू किस्म के लोग भी होते हैं। हो जाना। जी जी। Interaction between two materials at an interface where they are in contact to prevent their separation. ठीक है जी। Material which are capable of bonding two surfaces together are called adherent, and materials or surfaces which, जी एक तो ये हो गया, तो दूसरा क्या होगा हमारे पास, ये ले, capable of bonding of two surfaces are adhesives, ये आपको नजर आ रहा होगा। और adherent किन को कहेंगे कि where the adhesives are applied। ठीक है जी। तो ये adhesives में और adherent में डिफरेंस होगा हमारे पास। Now there are few types of adhesion. One is mechanical adhesion and the other is chemical adhesion. तो जी, mechanical adhesion. Mechanical adhesion is adhesive simply engages in undercuts in the adherent surface. जैसे अभी हमने पीछे वो आपको पिक्चर बताई थी कि उसमें क्या हुआ था, हमने एक ऐसा अंडरकट बना दिया हुआ था, वो जो हमने इन्वर्टेड कोन बनाई थी, ज़हन में है? जी सर। तो वो जो इन्वर्टेड कोन थी हमारी, वो क्या थी, उसका मतलब ही यही था कि हमने इस तरह की जब कैविटी बना दी, ये नजर आ रही है इन्वर्टेड कोन के नहीं? अभी नहीं आ रही जी? यस सर, आ रही है। यस सर। इन्वर्टेड कोन नजर आ रही है? यस सर। बहुत अच्छा भाई, ये खुद बहुत शेयर हो जाती है।
Yes, sir. है? Yes, ये sir. हमें इन्वर्टेड नजर आ रही. ये इन्वर्टेड कोन जो है Yes, ये sir. वाली, ये पिक्चर नजर आ रही है, क्या है इसमें? जरा हाँ, बताएं। फिलिंग ये जो है ये जिसमें हमने एक फिल्म है सर और फिलिंग गैप है. जी, और क्या? गैप है सर, गैप। हाँ, गैप जो था। तो जी सर। ये तो बड़ा जबरदस्त सिस्टम है फिर तो, ये अगर ये ऐसे खुद ब खुद उठा लेता है तो। अच्छा जी, तो अगर ये माइक्रो उसमें अगर हो, माइक्रोमीटर एरिया में, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? माइक्रो मैकेनिकल। ठीक है, माइक्रो मैकेनिकल। और अगर बड़ा हो तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? मैक्रो मैकेनिकल। ठीक है जी, मैक्रो क्या हो गया? मैकेनिकल। ये दो टाइप्स इसकी होंगी। हमारी जरा टाइपिंग भी जरा पैदल है ना। तो माइक्रो मैकेनिकल मीन जो हमारे पास जी, माइक्रो मैकेनिकल हम किसको कहेंगे जी? इफ अटैचमेंट इन्वॉल्व्स ओनली फ्यू माइक्रोमीटर, then it is a micro mechanical attachment, and if we engage the material in undercuts, then it is a macro mechanical attachment. And now the chemical adhesion. So all we know about the chemical adhesion, तो इसमें क्या होगा जी? केमिकल एडहेजन में we achieve our adhesion through chemical means. In daily life, what we can achieve through a chemical adhesion, a bonding of two surfaces, and which we see in our daily life routine, is application of एल्फी। एल्फी के साथ हम क्या करते हैं? किसी भी दो सरफेसेस को जोड़ लेते हैं ना, तो ये हमारी केमिकल एडहेजन होती है। क्लियर जी? सर मैकेनिकल की समझ नहीं आई। मैकेनिकल बेटा, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है ये वाली? नो सर। तो ये पहले कैसे नजर आ रही थी? सर चेंज नहीं हो रही स्लाइड। अब देखें, ये ठीक है? जी सर आ गई। सर अभी हो गई। पिक्चर आ गई है जी? जी सर। ठीक है ना? ये देखें, ये हमने ये जो कैविटी बनाई ना इस तरह करके, इन्वर्टेड कोन, तो इसके अंदर अब जो भी हम पैक कर रहे हैं मटेरियल, तो ये इन जगहों पे खुद ब खुद हो गया। यहाँ पे अंडरकट, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरकट एरिया ना, ये वाला, ये आपके लिए हम इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। ये देखें, अगर हम यहाँ से सीधा करें इसको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया हमारा तकरीबन अंडरकट आ गया ना। हालांकि ये भी थोड़ा सा अंडरकट ही जी है, सर। ठीक है ना जी? तो ये चूंकि अंडरकट है, ये वाला एरिया, ये पूरे का पूरा ही, तो ये इधर से अगर ये इतनी होगी तो ये इधर से बाहर नहीं जा सकती। एज कंपेयर टू दिस एरिया, अगर हम इसको देखें, यहां से अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये देखें, ये तकरीबन इधर से बाहर निकल सकती है ये फिलिंग। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिकल जो है ना, इसको मैक्रो मैकेनिकल कहेंगे। ये इसके अंदर हमारी जो है ना एडहेजन हो जाएगी, क्योंकि ये इसके अंदर फुली जो है पैक्ड होगा मटेरियल। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा जी, इसके बाद जी हमने कहाँ पे जाना है? ये हो गए जी हमारे पास अच्छा जी, ये सॉरी, केमिकल एडहेजन आपकी आ गई। असल में मैं इधर दो तीन चीजें आप लोगों के लिए खोल के बैठा होता हूँ कि आप लोगों को दिखाता रहूं, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब से सिलसिले हो जाते हैं, फिर यहीं पे ये आ जाता है।
इसको पास करते हैं, न्यू शेयर करते हैं जी, और ये लाते हैं। ठीक है जी, केमिकल एडहेजन हो गई। तो इसके अंदर अगर हमने जो चीजें देखी थी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं हमारे पास, ये मुदस्सर को क्या हो रहा है यार, ये बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, इसका जरा पूछो उससे। वांडरवाल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सो इफ वांडरवाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व्ड in any adhesion, then the resultant bonding is relatively weak. And if the ionic or covalent links are present, then it will be a stronger bond. Clear जी? अच्छा जी, ये बॉन्डिंग वाली लाइन रिपीट करें जरा। कौन सी वाली जी? ये बॉन्डिंग वाली, स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड। बेटा सीधी सी बात है, वांडरवाल फोर्सेस जहां पे होंगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी, तो वो ये तो सिंपल जो है ना वो है लाइट फोर्सेस है ना, तो लाइट बॉन्डिंग होगी। जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होगा तो वो जबरदस्त किस्म की बॉन्डिंग होगी। ठीक है जी। ठीक है। इसके बाद ये आ जाती है वेटिंग। वेटिंग लफ्ज जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वेट कर देना, किसी को गीला कर देना। ठीक है जी। और तो ये सरफेस के ऊपर स्प्रेड होना है, वो स्प्रेड होना। हाँ किसी भी चीज को मतलब वो कर देना, वेट कर देना, स्प्रेड नहीं करना, वेट करना। वेट करना मतलब उसको थारोली उसको नहला दें, समझ जिसको कह रहे हैं आप। ठीक है। तो जो भी हो, जब तक वो मुकम्मल तौर पे फ्लो नहीं करेगा एडहेसिव जो है वो एडहेरेंट के ऊपर, उस वक्त तक हम उसकी वेटिंग नहीं कह सकते। ठीक है जी। तो वेटिंग के लिए हमारे पास अमूमन होना क्या चाहिए, कुछ इस किस्म की एक चीज आपको दिखाते हैं। एक तो विस्कासिटी उसकी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए कि जो मटेरियल है हमारा, आप इसको अगर देखें, ये नजर आ रही है स्लाइड अभी? नो सर। नो सर, सर यू अब हुई है कुछ? यस सर, यस सर, अब आ गई है वो चीज, हाँ यस सर, आ सरफेस गया। एरिया एंड विस्कोसिटी। ठीक है। तो ये जो सरफेस एरिया अगर आप देख रहे हैं, ये वाला, ये दोनों का सरफेस एरिया है। और विस्कोसिटी भी इनकी अगर आप देखें तो इसकी विस्कोसिटी भी आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि ये तीन हमारे पास पिक्चर्स हैं। एक में ये है कि हमारे पास सरफेस जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारा एडहेसिव होगा और ये एडहेरेंट होगा। ठीक है जी। ये वाली जो चीज है, ये लाइनें जो है, ये एडहेसिव हम कहते हैं इसको, और नीचे वाला एडहेरेंट सरफेस है। ए जो हमारे पास ये वाली जो बी है उसमें एडहेसिव और एडहेरेंट तो हमारे पास है, लेकिन इनकी सरफेसेस जो हैं ये आपस में मिल नहीं रही हैं। इनमें गैप्स आपको नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे। यस सर। ठीक है ना जी। तो इनमें ये गैप्स हैं, तो अगर ये होंगे तो इसका कांटेक्ट जो होगा ये स्मॉल एरियाज पे होगा। ये देखें, यहाँ पे कांटेक्ट, यहाँ पे क्लोज कांटेक्ट नहीं है पूरे का पूरा। और अगर वो फ्लो कर जाता है, वेटिंग पूरी करता है एडहेरेंट के ऊपर हमारा एडहेसिव, तो ये देखें बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट थ्रू आउट इसके अंदर हमें मिलेगा। क्लियर जी? यस सर। इसमें एक और चीज थी, उसके बाद विस्कोसिटी के अगर रोल हम देखें तो वो ये होगा हमारा जी कि अगर तो हमारे पास विस्कस मटेरियल है, इफ द मटेरियल इज विस्कस देन इट कैन नॉट अंडरगो इन द प्रोजेक्शंस और इन द माइक्रो मैकेनिकल पोर्स। ये माइक्रो मैकेनिकल पोर्स हैं जो हमने किसी भी मीन से यहाँ पे बनाए हुए हैं, माइक्रो मैकेनिकल, थ्रू एसिड एचिंग और थ्रू एनी अदर मीन। ठीक है जी। तो इन अगर हमारा एडहेसिव जो है वो बहुत ही ज्यादा थिक है, विस्कस है, इट कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू दीज एरियाज। एंड इफ इट इज वेल क्या उसको कह सकेंगे, ऑफ लो viscosity, it can penetrate more and more in these areas which were micro mechanically prepared. ठीक है जी। नाउ अब क्या है जी, हम कहां पे हैं फिर इसके बाद? माइक्रो मैकेनिकल भी आ गया।
और वो दूसरी भी आ गई। अब इसके बाद हमने जाना है जी आपके लिए प्रॉपर्टीज में। अच्छा ये नहीं, नाउ अगर हम एडहेसिव एडहेरेंट को देखें तो इसमें एक दो चीजें हमें और भी थोड़ी सी मिलती हैं कि कांटेक्ट एंगल हमारा क्या होना चाहिए। तो कांटेक्ट एंगल हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक और चीज भी दिखा देते हैं इसके अंदर। ये नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रही है कि नहीं? यस सर सर वो व्हाइट बोर्ड है। सिर्फ व्हाइट बोर्ड है, ये लो कांटेक्ट और वो हाई कांटेक्ट एंगल नजर नहीं आ रहा? जी आ सर रहा नजर आ रहा है। ओके सर। आ रहा है। रबी हो गया। चलो ठीक है। अच्छा जी, लो वैल्यू ऑफ कांटेक्ट एंगल अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एडहेसिव है, ये एडहेरेंट है। तो इस पे देखें बिल्कुल वो इसके ऊपर वेटिंग उसने की हुई है, मुकम्मल थारोली उसके ऊपर पड़ा हुआ है। और हाई वैल्यू ऑफ कांटेक्ट एंगल है, ये देखें कांटेक्ट एंगल कितना बन रहा है हमारा। ठीक है, ये एंगल है, इसमें ये एंगल है। अगर हम यहाँ पे जीरो हमारा यहाँ पे अगर हो ना, ये जीरो डिग्री को अगर हम यहाँ पे करें कि ये 0 डिग्री है और इधर भी 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारा ये जो एंगल बनेगा ये तकरीबन 35 का बनेगा। ठीक है ना, 30 25 इस तरह का बनेगा, ऐसे ही है। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारा ये 120 की 120 130 का बन जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द कांटेक्ट एंगल्स एंड इफ, चलो एक तो ये फंस जाता है सारा। चलो जी, these are our contact angles and adhesive and adherent properties of any material. Now miscellaneous physical properties of a material. Miscellaneous physical properties ये कौन सी होंगी जी? वो वाली प्रॉपर्टीज जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी। तो वो मिसलेनियस फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है जी? क्या बात है, लगता है सारे सोए रहते हो आप लोग। नो सर। सर डेंसिटी बहुत सी चीजें, डायमेंशनल Density. चेंज है, डेंसिटी है, अपीयरेंस है, सॉलिबिलिटी है, इरोजन है। ये नजर आ रहा है आपको? नो सर। हाँ, तो फिर कहाँ से आप बता रहे हो? बुक से पढ़ना है सर। चलो अच्छी बात है। यस सर मिसलेनियस। डायमेंशनल चेंजेस होंगी, लाजिम बात है। ये हमारे पास वो प्रॉपर्टी जो हमने वैसे पढ़ी तो हुई है, लेकिन इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा जो हमने नहीं पढ़ी थी। डेंसिटी, डेंस अगर कोई मटेरियल होगा, अगर हम बना देते हैं कोई डेंचर जो बहुत ही डेंस हो, तो क्या होगा? अपेरेंटली वो गिरेगा। ठीक है ना, हैवी किस्म का डेंचर जो अगर हम बना देते हैं, स्पेशली अपर डेंचर, इट विल फॉल ड्यू टू द ग्रेविटी एंड इट्स ओन वेट। देन अपीयरेंस, अपीयरेंस जो होती है वो क्या होती है? अगर कोई अच्छा लुक नहीं दे रहा तो फिर क्या होगा? वो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना अपीयरेंस उसकी। तो इसके अलावा पॉलीमराइजेशन, श्रिंकेज, ये भी जो है ना, ये सारी की सारी कहां से आएंगी? ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से आएंगी। तो केमिकल जो है हमारे अपने, इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो होंगी ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम जाएंगे। तो अच्छा, अपीयरेंस के अंदर अमूमन हमारे पास CIE एक चीज होती है, कमीशन इंटरनेशनल डी इक्लेरेज। ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं? नो सर वो व्हाइट बोर्ड है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड कौन सा? ये वाला? यस सर ये मिसलेनियस प्रॉपर्टीज जो लिखा हुआ हाँ, ये अपीयरेंस CIE कमीशन इंटरनेशनल डी इक्लेरेज। तो इसके अंदर वो जो है हमें बताते हैं जी 3 किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, ह्यू, क्रोमा एंड वैल्यू। ह्यू जो होता है वो कलर होगा, ग्रीन, रेड, ये ब्लू, ये ह्यू इसको कहेंगे। क्रोमा इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दैट इज लाइट ब्लू, dark blue, navy blue, etc. These two, hue and chroma, are the inherent properties of any material. उसका color और उसकी intensity. And the value, value is the brightness, light and dark. So it is not the
original property of the material and it can mislead us. हम किसी चीज को देखते हैं तो अगर उधर उसके ऊपर लाइट ज्यादा पड़ रही है तो वो हमें ज्यादा अच्छी नजर आएगी, जिस पे कम पड़ रही है वो हमें अच्छी ज्यादा नजर नहीं आएगी, तो वो हमें मिसलीड कर सकती है। तो उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या क्या आएंगी जी? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कोई है ज़हन में? नो सर। solubility and तुम लोगों ने कैसे ये पढ़ा हुआ, मैं तो ये हैरान हूं। आप लोगों ने वो कोई लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ? आप तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो सारे, उसमें आपको क्या पढ़ाया गया है जी? ये चैप्टर तो आप पढ़ चुके हैं ना? यस सर, पढ़ चुके हैं सर। तो फिर उसके अंदर ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपको नहीं पढ़ाई गई थी? सर केमिकल प्रॉपर्टीज में सारी सॉल्युबिलिटी, इरोजन और ये चीजें आती हैं। सॉल्युबिलिटी है और क्या? उसकी इरोजन जो होती है सर, वो चीजें। हाँ, इरोजन, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मतलब वही ना, आपको याद, केमिकल स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है जी, द मटेरियल शुड बी केमिकली स्टेबल। ये नहीं मुंह में रखें कुछ और होगा कुछ, क्योंकि वो केमिकली स्टेबल ही नहीं होगा, वो अपने केमिकल नेचर चेंज कर रहा हो। ठीक है, सो इट शुड नॉट डिसॉल्व, इरोड और कोरोड, एंड नॉर शुड इट लीचेस आउट। ठीक है जी, स्पेशली द टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी मटेरियल into the oral fluids. Then solubility mean the dissolution. Erosion is the chemical process of dissolution with a mild mechanical action. ये ज़हन में रखना है, erosion में और dissolution में या solubility में ये थोड़ा सा फर्क होता है। solubility खुद बहुत soluble हो जाएगा, erosion में chemical process of dissolution with a mild mechanical action. chemical process तो है ही है, लेकिन उसके ऊपर एक mild mechanical action भी होगा। ठीक है जी? जी सर। चलो, उसके बाद कुशनिंग इफेक्ट, ये भी जो है ये हमारा एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, ये वियर ऑफ हो जाता है। क्यों? इस वजह से कि प्लास्टिसाइजर जो हमारे पास होते हैं, कुशनिंग इफेक्ट जो हम बनाया होता है हमने डेंचर बेस एरिया के अंदर, डेंचर बेस में कुशनिंग इफेक्ट के लिए हमने केमिकल्स डाले होते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो प्लास्टिसाइजर्स जब वॉश आउट हो जाते हैं तो उसका कुशनिंग इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। तो इसके बाज़ औक़ात बेनिफिट्स भी होते हैं। बेनिफिट्स कैसे होंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पेशेंट को अगर वो मिल जाती है तो उससे भी पेशेंट को एक ओरल एनवायरनमेंट मिलती है। जब हम किसी टूथ में उसको अप्लाई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट को, या किसी कैविटी के अंदर डीप कैरीज एरिया में, तो वहां पे एक ऐसा माहौल हो जाता है कि वो क्या करेगा, एंटीसेप्टिक जो है एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देगा। इसी तरह फ्लोराइड कैन स्ट्रेंथन आवर डेंटल टिश्यूज। सेम अमलगम, तो अमलगम में क्या होता है, उसकी बाई प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो जो गैप्स होता है उसको फिल कर लेती हैं, जिसकी वजह से पर्कुलेशन नहीं हो सकती मटेरियल्स के अंदर। ठीक है जी। कोरोजन आप लोगों को मेरे ख्याल से अगर आप लोग मुझे क्लास थोड़ी सी और लेने दें तो आज ये चैप्टर खत्म होता है। 3-4 चीजें जी सिर्फ सर। रहती हैं। क्या ख्याल है? ले सर, ठीक है सर। ठीक है जी, बस अभी 1 मिनट 38 सेकंड है, तो हम इसको सिर्फ कोरोजन को हम करते हैं। इसमें आपको सेल्स बताते हैं और मेरे ख्याल से टोटल 8 या 9 स्लाइड्स होंगी। इसके बाद किस्सा खत्म हो जाएगा आज ही इस चैप्टर का। ठीक है ठीक है, सर। तो जो ही खत्म हो इसी जो है आईडी के ऊपर आप लोग दोबारा आ जाइएगा। ठीक है ना? आईडी हमारी यही है, मेरी वो जो है, क्योंकि वो मेरा प्राइवेट रूम है तो इसमें आपका वही 1 2 3 आपका पासवर्ड है, आप आते जाएंगे जैसे आज आप आ गए। ठीक है। अच्छा जी, कोरोजन, अगर हम कोरोजन को देखें तो कोरोजन क्या होगी हमारी जी? कोरोजन मीन क्या हो गया? सो जाते हो यार आप लोग तो। नो सर। हाँ Sir, corrosion is the degradation of the material. डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल इज कोरोजन। तो डिग्रेडेशन में क्या होगा? क्या
Sir, डिग्रेडेशन, chemical reactions. हाँ बिल्कुल, ये केमिकल है ना असल में, कोरोजन तो अमूमन केमिकल होती है। तो इसमें होता क्या है कि मटेरियल कोरोड हो जाता है, इसमें अमूमन एनोड और कैथोड बनते हैं हमारे पास, एनोड और कैथोड। तो एनोड और कैथोड के बारे में मेरा ख्याल से मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे कि नहीं? जी सर। अच्छा बताएं फिर, मेरे से ज्यादा जानते हैं तो बताओ कि क्या है, एनोड क्या है और कैथोड क्या है।